In my previous video, I had explained about electrostatic potential energy. Continuing with a similar concept, and today we are going to find out the potential energy of a dipole when it is placed in a uniform electric field. In the topic of electric field means previous chapter, I had explained about the forces on a dipole when it is held in an external electric field. So to revise that, I'll draw this diagram and I hope you will get that. Let us say this is a dipole which has charges minus q and plus q, and suppose this is the direction of electric field. So axis of the dipole makes an angle theta with the direction of electric field. I hope इतने से थोड़ा बहुत आपको याद आ गया होगा. Distance between charges is 2a, which we always take. It is standardized. And dipole moment of this dipole is P, where P is equal to Q times 2a. Dipole moment. This is what was explained earlier. Obviously theta is also P is also making an angle theta. P means dipole moment is also making an angle theta with the direction of electric field. So if you remember the diagram, although I am explaining it again so that you won't have any problem, there will be forces on both charges. Plus q will have force QE and minus q will have charge minus QE. Here QE and minus QE forms a couple. Right? Since these are equal and opposite. So the torque exerted by the couple will be, now I wanted you to remember this formula, that's why I am not speaking yet. Torque equals to, if you remember that formula, it is equal to P cross E, or in general by magnitude we write it P means Q into 2a and E means sin, obviously क्रॉस E है तो Q into 2a means P sin थीटा. यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, चलिए PE sin थीटा एंड एक वेक्टर इन्वॉल्व कर लिया n कैप और P इक्वल टू Q into 2a, सो Q into 2a and E sin theta. This will become the formula in magnitude wise, means without using vector QE, and we can also write out QE and 2a sin theta. तो ये फॉर्मूला है टॉर्क का. ये फॉर्मूला हमने पिछली बार ड्राइव किया था, इसको हमने फाइंड किया था. नाउ लेट अस कंप्लीट द डायग्राम. इस डायग्राम को कंप्लीट करें. सपोज यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ. लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. नाम रखने से थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन में, नेमिंग करने में और समझने में आसानी होती है. दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा. फाइन. अब इसमें अभी ये डायपोल इस तरह से रखा हुआ है कि इट इज़ मेकिंग एन एंगल
थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ जो डायपोल है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद ई। ई मीन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मीन्स उसकी वैल्यू इस एरिया में नहीं बदल रही है। तो ये डायपोल यहाँ रखा हुआ है जो कि थीटा एंगल बना रहा है, डायपोल का एक्सिस थीटा एंगल बना रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज इस डायपोल को हम रोटेट करते हैं अगेंस्ट द टॉर्क। इफ this dipole is rotated against torque, right, then there will be some work done. So to calculate the work done, let us assume let dipole is rotated very small angle, with a very small angle, rotated through a small angle d theta, इसलिए वर्क डन विल बी डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क डन हो गया। सो वी विल राइट डाउन डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। फाइन। नाउ टॉर्क की वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये मिलेगा हमें। सो टू कैलकुलेट द वर्क डन वी मे इंटीग्रेट dw, so we get whole work. सपोज एक जनरल सिचुएशन ले लेते हैं। सपोज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डायपोल वॉज दैट इट वॉज इंक्लाइंड। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि द डायपोल वॉज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद ई एंड विद द टॉर्क न्यू इंक्लिनेशन और न्यू ओरिएंटेशन, new angle made by dipole axis with electric field is theta 2। मीन एक डायग्राम भी बना दे रहा हूँ, चलिए समझने के लिए। मान लेते हैं पहले डायपोल ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा 1 एंगल बना रहा था, और न्यू पोजीशन मान लेते हैं कि ये है, राइट, ये थी मान लेते हैं इनिशियल, और ये हो गई न्यू पोजीशन जो कि थीटा 2 एंगल हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ऐसा ही ज़रूरी नहीं है कि पहले वाला थीटा 1 कम हो या थीटा 2 कम हो, कुछ भी कम या ज़्यादा हो सकता है। थीटा 1 हो सकता है कम हो, थीटा 2 ज़्यादा हो सकता है थीटा 2 कम हो, थीटा 1 ज़्यादा हो, दोनों ही थिंग पॉसिबल हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फाइन, ये समझने के लिए मैंने बना दिया अलग से। ओके, तो थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में इसका मीनिंग हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। सो इसकी वैल्यू रख लेते हैं अब हम पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा। आई होप अब इंटीग्रेशन आपके लिए इतनी बड़ी परेशानी तो होगी नहीं, ये बहुत आसान इंटीग्रेशन है। पी ई साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, माइनस कॉस थीटा। थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट्स हमें रखनी है अभी। सो दिस फॉर्मूला बिकम्स पी ई माइनस, ध्यान दीजिए, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, बिकॉज पहले हायर लिमिट रखी जाती है फिर माइनस लोअर लिमिट रखी जाती है। सो दिस फॉर्मूला बिकेम नाउ W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 प्लस में आ जाएगा, कॉस थीटा 2 नेगेटिव में आ जाएगा। W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो दिस इज दी, ये क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल
in an external electric field which is represented by U also. फाइन। तो हमारी ये आई पोटेंशियल एनर्जी। अब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जब भी कोई न्यूमेरिकल अगर हमें सॉल्व करना है तो थीटा 1 और थीटा 2 हमें क्वेश्चन में दिए होंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें थीटा 1 नहीं दिया होता है, तो अगर थीटा 1 नहीं दिया हुआ है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट थीटा 1 की जो वैल्यू है वो ले लेनी है 90, राइट। बिकॉज थीटा 1 जो 90 है उस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम ये मानते हैं कि डायपोल की एनर्जी ज़ीरो होगी अगर डायपोल पहले से 90 डिग्री पर ओरिएंटेशन 90 डिग्री ओरिएंटेशन पर था। मतलब कहने का ये डायग्राम समझा देता हूँ मैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और डायपोल ऐसा है, राइट, तो ये उसकी मिनिमम एनर्जी यानी कि ज़ीरो एनर्जी की पोजीशन है। तो उन कंडीशंस में अगर न्यूमेरिकल करते समय सिर्फ एक ही एंगल दिया है, एक मैं न्यूमेरिकल चलिए करके बताऊंगा अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी में आगे बढ़ते हुए या चलिए इसमें लिख भी देता हूँ, चलिए, जिससे आप कन्फ्यूजन आपको कम ही हो। इफ़ इनिशियली डायपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर, डायपोल इज oriented perpendicular to electric field E, right, then theta 1 will become 90, right, and it is brought, and it means dipole, it is brought to some another orientation, theta 2 या थीटा लिख देते हैं और थीटा, चलिए। तो जो u है ये क्या हो जाएगा, PE cos थीटा 1 मीन्स 90 माइनस cos थीटा 2 मीन्स थीटा। इन दैट केस u इक्वल टू PE माइनस में cos थीटा। ये फॉर्मूला भी हमें हो सकता है कभी कभी डायरेक्ट ऐसे ही यूज करना पड़े। फाइन, नाउ लेट अस स्टडी द स्पेशल केसेस। नंबर 1, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं ये हेडिंग में ही बना रहा हूँ जिससे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन यही आता है कि डायपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसे मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, जब मैंने समझाया था डायपोल के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कब, व्हेन थीटा इज ज़ीरो, when theta is equal to 0, then we say the dipole is in stable equilibrium, all right। तो उस कंडीशन में u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू आएगी माइनस PE cos 0 डायरेक्टली, दैट मीन्स u इक्वल टू माइनस PE, राइट। और ये एनर्जी इसकी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। ये उसकी एनर्जी हुई स्टेबल इक्विलिब्रियम में, u इक्वल टू माइनस PE। बिकॉज एक चीज़ ध्यान रखिए, थीटा 1 हमने यानी ज़ीरो एनर्जी की पोजीशन मीन्स 90 डिग्री एज्यूम किया है, यही फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ से मैंने। केस 2, चलिए इसमें अच्छा समझा देता हूँ, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी समझ में बेहतर आ जाएगा। पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने ये बताया था अपने पिछले वीडियो में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग ये है कि किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम एक चार्ज लेके आते हैं इनफाइनाइट से, तो जो भी वर्क डन होता है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम एक डायपोल को
लेट अस सी हमारा डायपोल है -q एंड +q एट इन्फिनिटी रखा हुआ है, और हम यहाँ से इसको लेते हुए चले आ रहे हैं और यहाँ लेके आते हैं, मान लेते हैं इस एरिया में, है ना, जिस एरिया में ये मान लेते हैं दिस इज एन एरिया ऑफ यूनिफॉर्म ई, जहाँ पर वेयर पोटेंशियल इज V। फाइन। तो यहाँ पर अगर हम इसको लेके आए तो वर्क डन प्लस Q यहाँ तक आएगा, तो वर्क डन ऑन प्लस Q विल बी हाउ मच, QV इन दिस एरिया। अगर हम इसको यहाँ लाएं अंदर, चलो और डायग्राम इसको और ठीक बना देता हूँ मैं। अगर मैं इस चार्ज को लेके अंदर आता हूँ यहाँ पर, राइट, तो इस पर वर्क डन कितना हो जाएगा, प्लस QV। और ये जो आएगा, जब ये वाला चार्ज भी आएगा यहीं पर, ये वाला चार्ज ही मिलाया यहाँ पर, क्योंकि पूरा डायपोल आ गया है यहाँ, समझिए पूरा डायपोल -q + q यहीं आ गया है, तो इस पर कितना वर्क डन होगा, -QV। करेक्ट। तो नेट वर्क डन कितना होगा, QV और -QV, दैट मीन्स 0। तो जब डायपोल को हम परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में ही रखे हुए इनफाइनाइट से लेते हुए चले आएँ किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट, तो नेट वर्क डन ऑन डायपोल बाय दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. So since the work done is 0, hence this is the position of 0 potential energy, 0 electrostatic potential energy, right। तो इसलिए हम बोलते हैं कि U will be 0, बात खत्म, ठीक है ना। when theta is 90 डिग्री, when theta is 90 डिग्री। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। केस 3, थर्ड पॉइंट समझते हैं। पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू हो 180 डिग्री, और उस कंडीशन में हमारा जो डायपोल है उसको बोलेंगे हम कि ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब मैं आप पर इतना काम छोड़ रहा हूँ कि आपको U निकालना है, दिस इज़ योर वर्क, ऑलराइट। ये आप पर छोड़ रहा हूँ मैं, तो U की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। फाइन। ये जो है डायपोल इस समय एंटी पैरेलल, यानी कि चलिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, इतना काम तो कर ही देता हूँ मैं, कि आपका जो डायपोल है वो अब इस तरह से है, +Q -Q और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। एंटी पैरेलल हो गया है ये। कैसे एंटी पैरेलल, ये भी चलिए समझा देता हूँ। क्योंकि जो अब डायपोल मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसी है, हमेशा माइनस से प्लस, यानी कि ये है डायपोल मूवमेंट, करेक्ट। तो ये दोनों E और P के बीच में 180 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस एरिया में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लेते हैं ये थी, मैंने जो यहाँ बनाना भूल गया मैं, ठीक है। इसी तरह से शायद पहले वाले में भी मैंने नहीं बनाया कि आपका डायपोल ऐसा है -Q + Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है इसी डायरेक्शन में E, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यह है माइनस से प्लस, इस तरह से। इसलिए यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ नहीं, ये डायग्राम मुझे थोड़ा नीचे बनाना था, मैंने गलत जगह बना दिया। मुझे ये डायग्राम यहाँ बनाना था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी ये इस जगह, ये -Q + Q इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E, और ये P की डायरेक्शन। सो थीटा यहाँ पर 0 है, ये बात जो है। फाइन। नाउ लेट अस गो टू अ न्यूमेरिकल
जिससे थोड़ा ये सिस्टम और भी बेहतर समझ में आए। तो मैंने एक न्यूमेरिकल पहले से लिखा हुआ है, इसमें मैंने पहले लिख दिया था एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले मैं, जैसा मैं हमेशा बोलता आया हूँ, क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो लिखेंगे। लेंथ 2 सेंटीमीटर है, मीन्स क्या दिया है हमें, 2a दिया है 2 सेंटीमीटर, जिसको कि हम 0.02 मीटर लिख लेंगे। इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, दूसरी वैल्यू दी है हमें थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, जिसको थीटा 2 भी बोल सकते हैं हम। फाइन। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 टू द पावर 5, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम्ब। इफ इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, चलिए बहुत अच्छी बात है, टॉर्क भी दिया हुआ है 8√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस दोनों ही। तो ठीक है, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा फॉर्मूला लगाते हैं, हम देखते हैं इससे काम बन रहा है कि नहीं। तो टॉर्क इक्वल टू पी मीन्स क्यू इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू है हमारे पास 8√3, क्यू नहीं पता है, 2a पता है 0.02, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है 10 टू द पावर 5, और साइन थीटा भी पता है, राइट। तो नाउ आई एम नॉट सॉल्विंग इट, अब हमें क्यू की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। आई एम नॉट सॉल्विंग इट, यू विल हैव टू सॉल्व इट योर सेल्फ। ना लेट्स डू द पार्ट, इसका जो बी है उसको करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, ठीक है, U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ओके, हमारे पास थीटा भी है, P भी है, कैसे, बिकॉज P इक्वल टू क्यू इंटू 2a इंटू ई कॉस थीटा। Q हमारा फर्स्ट पार्ट से आ जाएगा, अब जो भी आए 2a की वैल्यू, Q की वैल्यू फर्स्ट पार्ट से, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। अब मैं अभी सॉल्व तो कर नहीं रहा हूँ, सो आई डोंट नो। 2a की वैल्यू 0.02 दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना दी थी, 10 टू द पावर 5, देखिए 10 टू द पावर 5 मैं पहले लिख चुका हूँ। और कॉस थीटा एंगल कितना दिया है क्वेश्चन में, 60 डिग्री। तो अब हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, बस अब सॉल्व करना रह गया है, एंड वील गेट द आंसर। और एक चीज़ ध्यान रखिए, माइनस लगाना था इसमें मुझे, तो इससे यू मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। फाइन, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, अगेन क्या दिया है, 2a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मीन्स 0.04 मीटर। इसके बाद और क्या दिया है, एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दे सिमिलर क्वेश्चन है, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस एट टॉर्क 4√3 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क इक्वल टू क्या लगाएं हम, पी साइन थीटा। फाइन, पोटेंशियल इफ द डायपोल है, अच्छा डायपोल है चार्जेस प्लस माइनस, ये भी हम लिख लें। क्यू जो दिया हुआ है हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 8 नैनो कूलॉम्ब। इसका मीनिंग, इसको हम लिख लेंगे 8 10 टू द पावर -9 कूलॉम्ब। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू हमें दी है, यस 4√3। पी की वैल्यू, पी मीन्स क्यू इंटू 2a, तो क्यू है हमारे पास 8 10 टू द पावर -9, ठीक है ना। क्यू है हमारे पास 8 10 टू द -9, और 2a है 0.04, देखिए ये दिया हुआ है, ये क्यू था और ये 2a है, तो हमारे पास ये p हो गया। ये क्या है, p। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, ये जो वैल्यू है ये है डायपोल मोमेंट p। फाइन, और साइन, ये हमारा हुआ पी। ई अब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ दी है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना ही है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज अननोन, ई वॉज अननोन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट ही करना है, इनटू साइन थीटा।
साइन थीटा कितना रखेंगे, साइन, और थीटा की वैल्यू देखिए 60 दी हुई है, तो साइन 60। अब इसमें एक ही क्वांटिटी अननोन है, वो ई है। अब इसमें भी आप सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। मैं सॉल्व इसको नहीं कर रहा हूँ। ये पार्ट हमारा फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट नाउ क्या पूछा गया देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, सेम क्वेश्चन है। U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा देखिए दिया गया है। P और E की वैल्यू फर्स्ट पार्ट से लिख लेंगे आप। P की वैल्यू Q/2A जो अभी निकाली है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसका आगे का पोर्शन आप खुद कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी, उस नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा अब कैपेसिटेंस का फंडामेंटल, या ये कह लें बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। बिहेवियर ऑफ, मैं लिख देता हूँ जिससे आप शायद रीड कर पाएँ। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा, वो कैपेसिटेंस और बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स पहले, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। इसको आप थोड़ा सा प्रिपेयर भी कर लीजिए और नए टॉपिक के बारे में थोड़ा रीड कर लेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। थैंक